Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 26th of September 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed in previous analysis for today's session, right? So we discussed that कि if we open flat both in Nifty as well as in Bank Nifty, flat खुलने के बाद we will wait and see कि जो previous day low है उसके नीचे if we get a closing only then we can go further, right? Previous day closing Nifty के लिए in Nifty's frame it was at 19 what? It was at 19650, right? And you may notice on 30 minutes ka frame, let me come back on 30 minutes, you may notice first candle itself was doji, right? First candle itself was doji. वो डोजी बनने के बाद द लो इटसेल्फ वाज एट 19630. तो पहले जो 600 का टारगेट था 19600 उसके लिए सिर्फ 30 पॉइंट्स की दूरी थी. इसका लो टूटने के बाद वी केम ऑल द वे एट 19601, राइट? वी केम एट 19601 जहां पे 30 पॉइंट्स थे, बट अगेन द एंटायर मूव वाज जस्ट अ फ्लैट मूव, राइट? Even though we had this 30 points ka move here in Nifty, it was clearly flat. Similarly in Bank Nifty also, if you see today's price action from first 915 ka candle, it already broke the low, right? The low was at 44, the low was at 44,540, which was broken, but the closing was at 44,630. ये टूटने के बाद again it went to the low of 44,400. This was the day low. We had this one-sided opportunity, but it was an entire flat day in Bank Nifty also as well as in Nifty also, right? Even though Bank Nifty has closed green, but the candle is doji. ये जो candle है आज की वो doji है, right? इसका जो हाई है फिर भी प्रीवियस डे कैंडल के अंदर ही है, राइट? प्रीवियस डे कैंडल के हाई के अंदर ही है, फॉलोइंग द लोअर हाइज एंड लोअर लोज इटसेल्फ. वाइल इफ वी सी निफ्टी तो क्लियर कट डोजी है, जो क्लोजिंग भी क्या है 0.30 या 0.34 पे आज का क्लोजिंग. एंड अगेन इट इज प्योरली अ फ्लैट डे, राइट? प्योरली अ फ्लैट डे इन निफ्टी. Now what further? What for Tuesday, right? For 26th of September. Now if we see the same thing on days frame, let me just remind you, Bank Nifty mess, especially JBB, we have said this in so many previous sessions, right? People who have been watching this from previous videos, they may remember that I have said this कि जब भी days frame पे Bank Nifty पे हमें doji मिली है, most of the days का price action has been inside the doji, भले ही हाई तोड़े या लो तोड़े. दिस वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन बैंक निफ्टी. अगर एक डोजी मिल जाए तो उसी के अंदर प्राइस एक्शन आगे के 2-3 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है, राइट? लुक एट हियर द वे आई एम मार्किंग, लुक एट दिस डोजी, लुक एट दिस डोजी, अगेन दिस डोजी. ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक टाइम ऐसा हुआ है. नाउ इस डोजी के लिए इसके ऊपर ही गया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी पे जब हमें डोजी मिला है, द प्राइस एक्शन हैज स्टेड फॉर 1 to 2 days इन द प्रीवियस फ्रेम इटसेल्फ, राइट? इन द प्रीवियस फ्रेम इटसेल्फ, look here also, and has stayed in the previous frame itself for days frame, right? So considering that and also saying this doji on nifty after 4 continuous sessions, right? So what is the further analysis for Tuesday? So I will keep it on days frame itself in order to make you understand. Now what was today's high? आज का हाई क्या था निफ्टी पे? Let me just check. Today's high is at 19734, right? 19734. Okay, just a minute. Today's high was at 19734. And what is today's low? आज का low was 19601. We will consider 19600, right? 19600 was the low and 19734 is the high of the day. Respecting this previous high also, which comes closer to 19800, right? What is this high? This high is at 19798. Yes, at 19800 only. 19798, we will consider 19800 itself, right? Now you may notice ki we are still following this lower highs and lower lows, right? We are still following this lower highs and lower lows. That is the reason now tomorrow if we open flat या gap up, seeing such a range bound day इस doji के अंदर, I will not take any trade if we are 50-60 पॉइंट्स ऐसे ऊपर नीचे या 50-60 पॉइंट्स यहाँ से नीचे जाए, राइट? बट फ्लैट या गैप अप खुले इस बिग पॉइंट से, राइट? आज की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग कहाँ पे? कंसिडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज ऑल्सो, इट इज एट 19674, राइट? यहाँ पे क्लोजिंग है 19674. सो फ्लैट या गैप अप खुले ओनली इफ वी कम इनसाइड दिस रेंज, राइट? 734 भी नहीं, 19740 के ऊपर जाए. अगर लेट से इफ वी गो अबाउ 19740 से लेके अगर 19800 के रेंज पे जाए, फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए? गैप अप 50-60 पॉइंट्स कहीं पे भी खुल जाए, राइट? 60 पॉइंट्स के ऊपर इस रेंज में आने के पास 19740 से लेके 800 के रेंज पे आने पे अगर 30 मिनट्स की कैंडल रेड बन जाए, 30 मिनट्स की कैंडल रेड कैसे? ऐसी रेड बन जाए. वी आर सीइंग इट ऑन डेज फ्रेम, पर ऐसी कैंडल 30 मिनट्स की ऐसी रेड बन जाए, ऐसी डोजी जैसे नहीं जिसके बाद डेज फ्रेम पे भी वेंट साइडवेज, राइट? ऐसी डोजी जैसी नहीं, ऐसी हैमर जैसे भी नहीं जिसके बाद डेज फ्रेम पे स्टिल वी वेंट अप, राइट? तो ऐसी कैंडल नहीं.
व्हाट काइंड ऑफ कैंडल वी आर डिस्कसिंग, वापस जो पहली दो कैंडल देखे, ऐसी रेड बनने पे, ऐसी रेड बनने पे, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे 4 रेड्स, ये ऐसी भी रेड मिल जाए, राइट, अगर ऐसी रेड मिल जाए, ऐसी भी रेड चलेगी, राइट, वापस इस तरीके से नहीं, राइट। सो द रेड्स दैट वी मार्क, ऐसी रेड अगर 19740 के ऊपर, राइट, 19740, वी हैव क्लोज्ड एट 19674, सो फ्लैट खुले या ऊपर खुले, लेट इट गो अप, राइट, आई विल वेट टिल द अपॉर्चुनिटी, इसके पास जाए, इसके पास जाके 19740 के ऊपर से लेके 19800 के रेंज पे अगर 30 मिनट्स पे ऐसी रेड बनाए, द रेड दैट वी मार्क, ऐसी रेड अगर यहाँ पे मिल जाए, इस रेंज के पास मिल जाए, इस रेंज पे बन जाए, या फिर ऐसी शूटिंग हैमर बन जाए, देन कंसिडरिंग अगर 740 पे बन जाती है तो एसएल विल बी एट 19800 के पास, राइट। 750 पे भी बन जाए तो 19800, 800 के आसपास ही बन जाए, यानी 780 पे बन जाए, 770 पे बन जाए, तो 820 तक का एसएल आई विल कीप, 820 तक का एसएल आई विल कीप, राइट, अगर 780 या 770 के पास ही बन जाए तो, राइट। सो इस रेंज पे अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, वी आर डिस्कसिंग इट ऑन 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी रेड बन जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, कंसिडरिंग एसएल जो वी डिस्कस, राइट, ऐसे एसएल के साथ, देन आई विल कंसिडर 30 मिनट्स के कैंडल पे अगर ऐसी रेड बनने के बाद अ पुट एंट्री अगेन टिल टुडेज लो, राइट, आज के लो तक के लिए, आज के लो तक के लिए आई विल स्टे इन द पुट, अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले और 740 के ऊपर, राइट, 740 के ऊपर या 800 की जोन पे ऐसी 30 मिनट्स की रेड बन जाए, तो अगर कोई भी कैंडल 800 तक जाए और इसके ऊपर आर्ली ग्रीन क्लोजिंग दे पाए, राइट, कोई भी कैंडल 800 तक जाए, 800 इज नॉट बिग टारगेट 670 के पास से, राइट, इट इज 130 पॉइंट्स की रेंज पे ही है, राइट, तो इसीलिए अगर कोई भी कैंडल आर्ली रेंज पे 19800 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, राइट, देन आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आई विल कंसिडर कॉल तभी ओनली इफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड की on the weekly frames also Friday, only if it can close above 19870, right, 19870 के ऊपर अगर डेज क्लोजिंग दे दे, we have discussed this on Friday, इसके ऊपर अगर डेज कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, ओनली देन आई विल कंसिडर कॉल का ट्रेड फॉर अपकमिंग सेशंस, राइट, अपकमिंग, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड नाउ, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड, बट क्या कि अगर 19800 के ऊपर, राइट, अगर 19800 के ऊपर आर्ली कैंडल क्लोज हो जाए, फ्लैट खुल के जाए, गैप अप खुल के जाए, या फिर रेंज बाउंड होके भी इसके ऊपर जाए, देन आई एम नॉट, अगर अर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड, राइट, देन आई एम नॉट टेकिंग ट्रेड, इसके बाद कोई पुट का सिनेरियो भी नहीं, अगर इसके ऊपर अर्ली क्लोजिंग हो जाए, हाँ, वापस इसके पास आके इसी का लो वापस 30 मिनट्स पे तोड़ दे, इसका लो वापस 30 मिनट्स की कैंडल पे तोड़ दे, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो वापस डे लो के पास पे, राइट, वापस डे लो के पास पे, कंसिडरिंग अगेन दिस कैंडल का हाई एज एन एसएल, दैट इज फ्लैट खुले या गैप अप का खुले, उसका सिनेरियो उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सबसे पहले फ्लैट खुले, यानी 30 पॉइंट्स की रेंज पे ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, जब तक 19600 फ्लैट खुलने पे जब तक 19600 वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगेन विद दिस काइंड ऑफ रेड कैंडल्स, राइट, ऐसे रेड कैंडल के साथ, ऐसे रेड कैंडल के साथ, नाउ व्हेन दिस फ्रेम वाज एक्टिंग एट सपोर्ट, राइट, ये फ्रेम जब सपोर्ट की तरह ऊपर गया आया था, उसके बाद लुक एट दिस कैंडल, हाउ दिस कैंडल बिहेव, तो ऐसी कैंडल 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर 19600 ब्रेक कर सके, राइट, फ्लैट खुलने पे, वी आर डिस्कसिंग फ्लैट खुल के ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर 19600 ब्रेक कर सके, ऊपर का सिनेरियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद गैप अप, राइट, नीचे आने पे only if it is able to break 19600 on 30 minutes frame with the candles that we mark, right, with the candles that we mark, जिस तरीके की कैंडल से we are seeing, again not this type of red hammer, ऐसी रेड हैमर बनने के बाद भी नहीं, राइट, ऐसी ये ऐसे टाइप के हैमर बनने के बाद नहीं, this type of price action नहीं, we already discussed which kind of red candles which we keep on discussing in each and every video, right, ऐसे अगर 19600 ब्रेक कर सके, ऐसे अगर 19600 ब्रेक कर सके, then I'm again interested to take the put considering आज का closing, right, which is at 19674, I will consider 19675, 19675 पे I will keep 75 points का SL, right, 75 points का SL, and again for this ये hammer के low का target which comes closer to 19500, right, till the target of 19500, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, फिर भी 75 पॉइंट्स के एसएल के लिए आई एम रिवॉर्ड टेकिंग द रिवॉर्ड फॉर 19500 का पॉइंट, राइट, सो स्टिल 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, कब, अगर 19600 30 मिनट्स पे ब्रेक कर सके फ्लैट खुलने के बाद, राइट, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ब्रेक कर सके नीचे आने पे, ऊपर का सिनेरियो भी ऑलरेडी डिस्कस, 30 मिनट्स पे ब्रेक कर सके, तो इसके पास आके वापस अगर हैमर बन जाए, इसके पास आके अगर ऐसी रेड हैमर वगैरह बन जाए, वैसी बन जाए तो बन जाए, वापस ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस उसका लो, उसी कैंडल का लो अगर 15 मिनट्स की कैंडल भी ब्रेक कर पाए, अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट कंसिडरिंग द सेम टारगेट सेम एसएल, राइट, सेम टारगेट एंड सेम एसएल, अगर ग्रीन बन जाए या रेड हैमर बन के ऊपर चला जाए तो प्राइस एक्शन, दैट इज फ्लैट,
अगर गैप डाउन ही खुले, राइट, अगर गैप डाउन 19600 के पास खुले, 19600 के पास, और 15 मिनट्स की कैंडल भी अगर रेड बन जाए, राइट, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी रेड बने, ऐसी रेड बने, अगर ऐसी डोजी बने तो नहीं, फिर डोजी बने, फिर ऊपर जाए, ऊपर से वापस आके इसी का लो तोड़े, इसी का लो तोड़े 15 मिनट्स पे, देन आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। पर गैप डाउन 19600 के पास खुले, उसके पास खुल के अगेन दी सेम काइंड ऑफ रेड्स 15 मिनट्स पे भी बनाए 600 के पास, 600 के पास बनाए, अगेन दी एसएल विल बी एट 675, टारगेट विल बी 19500 फॉर गैप डाउन, राइट, टारगेट अगेन विल बी 19500, अगर 600 के पास ही वैसी रेड बनाए तो, राइट, नॉट दी हैमर, ऐसी हैमर नहीं, द रेड प्राइस एक्शन दैट वी डिस्कस, राइट, ऐसे अगर ऐसी भी बन जाए, लेट इट पंप अप, पंप होके वापस लो ब्रेक करे, राइट, पंप होके वापस लो ब्रेक करे, ओनली देन आई विल एंटर, दैट इज 19600 के पास। अगर इससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, यानी एकदम 19580 के नीचे मिल जाए, राइट, 19580 के नीचे, 570 के पास, 550 के पास, दिस इज अगेन अनदर सपोर्ट एरिया, इसके पास अगर डायरेक्टली गैप डाउन ही आ जाए तो, इसके पास गैप डाउन आ जाए तो इसलिए इस रेंज के पास आ जाए, यानी 580 के नीचे, राइट, 580 जोन के नीचे अगर गैप डाउन हो जाए, 600 तक वी हैड कंसीडर, तो 580 के नीचे हो जाए तो आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट, 30 मिनट्स आई विल वेट, 30 मिनट्स रुकने के बाद अगर उसका लो ब्रेक हो जाए, देन आई एम अगेन इंटरेस्टेड इन द पुट, फिर 580 570 जिसके पास भी आ जाए, 560 के पास, 50 के पास, आई विल वेट एंड सी 30 मिनट्स के बाद वो नेक्स्ट कैंडल अगर 15 मिनट्स की फ्रेम पे उसका लो ब्रेक कर सके, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट कंसीडरिंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, अगेन फॉर द लोअर हाइज एंड लोअर लोज का टारगेट, राइट, इफ स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन आई एग्जिट, वापस से लो गेट्स ब्रोकन ओनली देन आई री एंटर, दैट इज अगर 580 वगैरह इसके नीचे भी गैप डाउन हो जाए तो, राइट, और अगर फर्स्ट 30 मिनट्स में ही अगर कैंडल फर्स्ट 30 मिनट्स का लो ब्रेक हो जाए तो, अगर गैप डाउन 580 के नीचे भी होके अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाने लग जाए, लेट इट पंप अप, ऊपर जाके वापस से लो ब्रेक करे, ओनली देन आई विल एंटर, लेट द कैंडल बी ग्रीन और लेट द कैंडल बी रेड, बट आई विल नॉट गो इन कॉल सिनेरियो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इज ओवरऑल एनालिसिस ऑफ निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इटसेल्फ वी डिस्कस्ड कि बैंक निफ्टी जब डोजी जाता है, सो ऑन डेज फ्रेम कंसीडरिंग द प्रीवियस प्राइस एक्शन, राइट, ऑन डेज फ्रेम ऐसा हो जाता है कि काफी प्राइस एक्शन इसी के अंदर, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, पूरे दिन उसके अंदर है, या फिर पूरे इसके बाद के डेज कैंडल भी इसी के अंदर डाले, राइट, एक या दो डे कैंडल। सो कंसिडरिंग दैट आज का हाई कहां पे था, राइट, टुडेज हाई इन बैंक निफ्टी, लेट मी जस्ट चेक आज का हाई कहां पे था, टुडेज हाई इज दैट 44936, राइट, यानी ये पुराना जो 44996 के पास 45000 का हाई आ रहा है, दैट इज द हाई इटसेल्फ, राइट, और ये जो लो कहां पे 44400, लेट मी जस्ट राइट डाउन, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इट इज एट 45k का रेजिस्टेंस है, एंड सपोर्ट कहां पे, सपोर्ट इज एट 44400 के पास है, राइट, 44400 के पास सपोर्ट है। तो सबसे पहली बात तो फ्लैट खुले या गैप अप खुले, जस्ट लाइक निफ्टी, फ्लैट खुले या गैप अप खुले 45k के पास आए, राइट, 44900 की रेंज से, 44900 के रेंज से 45k के पास आए, 45000 के पास आए, इसके पास आके ये 45000 के रेंज के पास आके, 44900 के रेंज के पास आके अगर 30 मिनट्स पे कोई भी कैंडल ऐसी शूटिंग स्टार बन जाए, ऐसी शूटिंग स्टार बन जाए, इस तरीके की रेड बन जाए, वापस ऐसी शूटिंग स्टार बन जाए, ऐसी हैमर बने, क्या नहीं, ऑन डेज फ्रेम इटसेल्फ यू कैन आल्सो नोटिस ऐसी हैमर बनने के बाद प्राइस एक्शन अगेन वेंट साइडवेज, यहाँ पे लो जाके भी प्राइस एक्शन वापस ऊपर गया, राइट, सो लुक एट दी प्राइस एक्शन कैसे, लुक एट अगेन दिस टाइप ऑफ कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, हैमर बनने के बाद वापस इसी के अंदर था, बट ऐसी नेगेटिव बनने के बाद इट वेंट डाउन, राइट, सो ऐसा प्राइस एक्शन चाहिए अपने को वापस, हाई कहाँ पे था 45k, हाई वॉज 45k, एंड लो कहाँ पे, लो इज दैट 44400 के पास है, राइट, 44400 के पास है, सो 44900 की रेंज से लेके 45k की रेंज पे अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले, राइट, इसके पास आए और 30 मिनट्स पे ऐसे नेगेटिव प्राइस एक्शन, द वन दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी आल्सो, अगर 30 मिनट्स पे यहाँ पे ऐसी रेड बन जाए, राइट, ऐसी रेड बन जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, 44766 तक, लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज लेके भी इट इज एट 44766, राइट, सो यस, सो 44766 तक आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन दी पुट, अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले और इसके पास जा रहे हैं 30 मिनट्स पे, अगर 30 मिनट्स की कैंडल 45k के ऊपर आर्ली ग्रीन बनाए, 30 मिनट्स की कैंडल 45000 के ऊपर आर्ली ग्रीन बनाए, 1 आवर की फ्रेम पे, 1 आवर की फ्रेम पे अगर ग्रीन बनाए, देन आई एम क्लियरली अवॉइडिंग ट्रेड, देन आई एम नॉट टेकिंग एनी पुट, राइट, उसके बाद वापस उसका लो भी ब्रेक हो जाए, अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दी पुट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, और इसके बाद भी अगर डेज हाई के ऊपर क्लोज हो सके, देन आई एम नॉट टेकिंग पुट, इनफैक्ट उसके बाद फॉर द नेक्स्ट डे वी कैन गो फॉर कॉल का ट्रेड, राइट, नेक्स्ट डे के लिए, उस दिन के लिए नहीं, इसलिए इसके ऊपर अगर 45k के ऊपर 45000 के ऊपर अगर आर्ली कैंडल ग्रीन हो जाए तो कोई भी पुट का ट्रेड नहीं, राइट,
अर्ली हो जाए, नहीं तो 30 मिनट्स पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 30 मिनट्स पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसके पास आके अगर अर्ली रेड बन जाए, ऐसी शूटिंग स्टार बन जाए जो यहाँ पे दिख रही है, या फिर ऐसी रेड मिल जाए, then considering high of that candle as an SL, यहाँ से 44,766 तक जाएंगे, and if it continues lower highs and lower lows, कि यहाँ से पम भी ले पर पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर सके, उसी तरीके से आके अगर 44,766 भी ब्रेक कर दे, then I'm interested till the low का टारगेट ऑल्सो, दैट इज फ्लैट या गैप अप पे ऊपर जाए, उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 44,400 के पास आए, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर 44,400 के पास आए, आफ्टर 4 days वी हैव सीन अ ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग, राइट, इवन इफ इट हैज नॉट ब्रोकन दी है, यहाँ से बायर्स ने एक बार सपोर्ट दिखाया, राइट, इसलिए 44,400 के पास आने पे 44,400 के पास आने पे ये पुराना जो स्विंग है, राइट, पुराना जो स्विंग विच कम्स क्लोजर टू 44,300, लेट मी जस्ट कंफर्म, ये स्विंग इफ यू सी दिस हैमर का लो, यस इट इज एट 44,310, तो ये स्विंग 44,310 के पास है, इफ वी कम क्लोजर टू 44,400, राइट, अगर यहाँ से इफ वी कम क्लोजर टू 44,400 यानी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, यहाँ से अगर हम लोग 44,400 के पास आए, राइट, 44,400 के पास आए, गैप डाउन से आए या फ्लैट से आए, 44,400 के पास आए, आई विल कंसिडर एसएल एट 44,310, और ओनली इफ 30 मिनट्स का कैंडल, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी हैमर बन जाए, इवन इफ इट इज रेड इट इज ओके, ऐसी हैमर बन जाए या फिर ऐसी ग्रीन हैमर बन जाए, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन मिले, इस तरीके की हैमर बन जाए, इस तरीके की हैमर बन जाए, अगर ऐसी हैमर कहाँ पे 44,400 के पास से 300 की रेंज पे, राइट, 44,400 के पास से 44,300 की रेंज पे, 44,400 के पास से 300 की रेंज पे अगर ऐसी हैमर मिल जाए, राइट, ऐसी हैमर मिल जाए, एक बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर मिल जाए 30 मिनट्स की फ्रेम पे, 30 मिनट्स वी आर डिस्कसिंग, राइट, वी आर नॉट डिस्कसिंग 5 या 15 मिनट्स, इस लो के पास मिल जाए, then considering low of that candle as an SL, right, see scenario now is lower highs and lower lows का, right, इसका सिनेरियो है, पर इसके पास अगर 30 मिनट्स पे ऐसी मिल जाए, then I am interested to take one intraday call का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, राइट, इंट्राडे कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दिस क्लोजिंग, इस क्लोजिंग तक जो 44,766 के पास है, अगर 30 मिनट्स पे ऐसी कैंडल बन जाए, राइट, हैमर्स द वन दैट वी डिस्कस्ड, ऐसी हैमर बन जाए, ऐसी हैमर बन जाए, ऐसी हैमर मिल जाए 30 मिनट्स पे ओनली देन, पर अगर आर्ली कैंडल अगर 44,400 ब्रेक कर दे, राइट, आर्ली, फिर 44,400 ब्रेक करके 300 तक भी क्यों ना जाए, आर्ली रेड कैंडल ब्रेक कर सके, ऐसी रेड, या फिर वापस इस तरीके की रेड से ब्रेक कर सके, इस तरीके की रेड से ब्रेक कर सके, ऐसी रेड बना के ब्रेक कर सके, ये जो रेड हमें दिख रहे हैं, राइट, नॉट दिस हैमर, ये हैमर नहीं, यहाँ पे ये जो तीन दिख रहे हैं, अगर आर्ली कैंडल ये लो ब्रेक कर दे, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट, राइट, क्योंकि आर्ली ने ब्रेक कर दिया, फिर ये सपोर्ट ही ब्रेक कर दिया बड़े फ्रेम पे, राइट, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, यहाँ से कंसिडरिंग 80 पॉइंट्स का एसएल, राइट, जो अगर 44,400 ब्रेक कर दे तो 44,480 का एसएल, 80 पॉइंट्स का एसएल, एंड अगेन फ्रॉम हियर 44,400 से लेके अगेन टिल द टारगेट ऑफ 44,000 तक के टारगेट के लिए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे फॉर दिस टारगेट 44,000 तक का, राइट, नॉट शार्प 44,000, इसके ऊपर भी 50 60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स इसके ऊपर आ जाए तो भी, अगर आर्ली ही ब्रेक कर दे, दैट इज फ्लैट या गैप डाउन खुल के, दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस फॉर टुमारो, राइट, फॉर टुमारो. So that's it for today. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.